तो अभी भोजवासा से निकल चुके हैं, हवा चल रही है, आवाज पता नहीं आ रही होगी कि नहीं। भोजवासा से निकल चुके हैं हम लोग 2:35 पे। अब चल रहे हैं साथ के साथ एक साथ। इधर शायद लग रहा है बारिश हो रही है। अगर बारिश हुई तो वो खोलना पड़ेगा हमको रेन। बूरो चीड़वासा वो है। वो गुलदार देख रहा हूँ ऊपर से। बहुत ऊंची ऊंची पीक है यहाँ पे इस ट्रैक पे। आगे बारिश हो रही है उधर चीड़वासा में। सीधी खाई है नीचे, बहुत गहरी। ये भागीरथी बह रही है नीचे और ऊपर बहुत ही खतरनाक माउंटेन, बहुत ही ऊंची ऊंची, बहुत ऊंची ऊंची पीक्स है। इनका नाम मैं वीडियो के नीचे लिख दूंगा, कौन कौन सा माउंटेन्स है ये। ये देखिए बाहर से भी आते हैं लोग, फॉरेनर्स भी ट्रैक कर रहे हैं। तो इस वाले ट्रैक पे फॉरेनर्स भी देखने को मिले हैं। एक आया था वो एम्स्टर्डम से था, अभी एक ये पीछे निकल गया। अगर नेट चल रहा होता तो मैं देख के बताता ये कौन से माउंटेन बहुत ऊंचे हैं। इनकी पीक लिटरली विजिबल नहीं है, जबकि हम 3000-4000 मीटर पे ऑलरेडी हैं, उसके बाद भी ये इतने ऊंचे हैं। मेरे पीछे देखो, ये रॉक फॉलिंग जोन आ गया है, इधर से जल्दी से निकलना पड़ता है। पत्थर गिरते ही रहते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खतरा है। ऊपर ही देख सकते हो। वाली बारिश में ये कितना मैसिव बोल्डर रखा हुआ है ऊपर।
ये भी कभी ना कभी गिर ही जाएगा, बस इंतजार कर रहा है अपने गिरने का। बहुत ही बड़ा है, बहुत खतरनाक ट्रैक है ये वाला। फिर से एक रॉक फॉलिंग जोन। ये कुछ 2-3 ऐसे स्पॉट है जहाँ पे रॉक गिरती रहती है, तो यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना पड़ता है। और धूल मिट्टी उड़ती रहती है, उसकी वजह से शक्ल भी थोड़ी बिगड़ गई होगी, मुझे पता है। बाकी ये देखो, वाली है। So apparently this is not an easy trek to do because most of us are fully exhausted. Some dal chawal we had some dal chawal in Bhojwasa that gave us some energy to walk towards the Gangotri. Otherwise we were fully exhausted. So now we are moving to Chidwasa. Chidwasa is 5 kilometers from Bhojwasa, and after that there is an 11 kilometer easy to moderate trek to Gangotri. As you can see, most of us are fully dead. Phones are dead, power banks are dead. We had 60,000 mAh batteries along with the charger. The phones were already charged, and because there is no electricity in Bhojwasa and Chidwasa, so this is a gentle reminder for you to charge your devices before going to this trek. Carry your power banks. And carry some big power banks which are like 20,000 mAh power banks. We had 320,000 mAh power banks, and they are totally dead. All the phones are dead, all the power banks are dead. So charge your devices and charge your power banks as well. And carry some food with them. This was for your mobile phones, and carry food along with you so that you can have instant energy while doing the trek, because there are only 2 spots where you can get food. The one is Chidwasa, and after that Bhojwasa. So please carry something with you like this. This is not gonna give us energy, but it is gonna help us in somewhat way. And don't throw this wrapper anywhere. And remember to bring these wrappers along with you. Do not throw these wrappers. Like I have carrying all the wrappers that I have used on this trek along with me. Some are in the bag and mostly in my jackets. So don't litter anywhere in this trek. As you can see, there is literally no plastic on the track.
On the 19-kilometer stretch, I have not seen a single plastic. So this is an excellent approach to keep nature clean. We have like 200 to 300 security fees deposited at the entry gate, and that will be refunded to us when we will show them the wrappers we have used on this track. So this is an excellent approach to tackle plastics on these beautiful tracks. So let's move to Chidwasa. I think it might be visible that those trees, those are of cheed, pine. So this is Chidwasa, and we have to get there to our second checkpoint, and after that we will have left 11 kilometers for Gangotri. So let's keep moving and keep hustling. This is an excellent track for track enthusiasts and nature lovers. As you can see, there is nature all around. And always remember one thing. What? Always keep smiling. ऐसे डिसेंट जब आते हैं तभी छाले वगैरह, पलके वगैरह पड़ जाते हैं, क्योंकि ये आगे की तरफ आ जाता है अंगूठा और छुगनियाँ वगैरह। ओट पूरे सूख चुके हैं। और ये वाले पहाड़ देखो एक बार, ये क्या कैसी फॉर्मेशन हो गई है कटने के बाद। अरे पहुंच गए पता है रोहित भाई, थकान ना हो रही, सीधा भागत भागत निकल गए, कोई दिक्कत ना हो रही है। जा भाजी आ जा, तेरी टाइम ना हो रही दिक्कत। अबे पत्थर आएंगे आगे, वही दिक्कत होगी। ये कहीं है चढ़ाई उंगल में छोटू धक्का दे दिया तेरे गुलदार की ऊंच लगी, पत्थर और दे दिए। बहुत सारी चढ़ाई तो गुलदार से ट्रेनिंग लेके आए तो ओए खाली बोतल ना का ऊपर नहीं चढ़ाई तो गुलदार आगे चले ना, वो पेड़ के पास वो कुछ झरना बह रहा पानी। अरे हाँ पानी पीना, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूविंग। नजारों के बीच में दोहरा चुके हैं गाइस। चल वफा हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए। ये देखिए सीधा ग्लेशियर से वाटर पिघल के आ रहा है, स्नो। और अभी नीचे चल के दिखाते हैं कितना क्लियर है ये। जाते टाइम भी मैंने आपको दिखाया था। अब जाते हैं, यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर। ये बहुत ही सुंदर जगह है। वो एक छोटा सा ब्रिज बना है क्रॉस करने के लिए। अगर ऐसा ही ब्रिज ये गोमुख में बना दें, भोजवासा में, तो इजीली क्रॉस हो जाता। लेकिन वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है क्रॉस करने के लिए। वहाँ पे आपको ट्रॉली के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो भाई वो टेंट दिख रहा चीड़वासा।
ये भी तो नहीं आ रहा। थोड़ा सा ही बचा। तो बनी हो बनी। नसीब से मिला जो ये तेरा साथ है, हर पल मेरे होठों पे तेरी ही बात है। नसीब से मिला जो ये तेरा साथ है, हर पल मेरे होठों पे तेरी ही बात है। अधूरा था मैं अब पूरा हुआ, जब से तू मेरा हो गया। लहराती हुई राहें, खोले हुए हैं बाहें, ये हम आ गए हैं कहाँ। पलकों पे गहरे हल्के रेशमी धुंधल के, ये हम आ गए हैं कहाँ। ये हम आ गए हैं कहाँ। पर्वतों के घटाएं हमारी दास्तां हाले से सुनाएं। सुनो तो जरा ये फूलों की वादी, हमारी ही कोई कहानी है सुनाती। सपनों के इस नगर में, यादों की रह गुजर में,
ये हम आ गए हैं कहाँ, ये हम आ गए हैं कहाँ। ऐसे बैंगर गाने और साथ में ये नज़ारे। जो राहों में है रुत ने सोना बिखेरा, सुनहरा हुआ तेरा मेरा सवेरा। ज़मीं सो गई बर्फ की चादरों में, बस एक आग सी जलती है दो दिलों में। हवाएं सनसनाए बदन कांप जाए, ये हम आ गए हैं कहाँ। हाँ, ये हम आ गए हैं कहाँ। सो गई बर्फ की चादरों में, बस एक आग सी जलती है दो दिलों में। हवाएं सनसनाए बदन कांप जाए, ये हम आ गए हैं कहाँ। तो अभी मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट में हम लोग आ चुके हैं इस ट्रैक के। ब्यूटीफुल तो पूरा ही है। अभी हम लोग आ चुके हैं चीड़वासा में। यहाँ पे चीड़ों का वास होता है। देखो, वैसे तो पूरा ट्रैक एकदम बंजर सा पड़ा है, छाई कोई कहीं भी छाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रेच है ना, ये वाला पार्ट बहुत ब्यूटीफुल है। ये देखो, चीड़ ही चीड़ खड़े हैं पूरे में, इसलिए इसे बोलते हैं चीड़वासा। बहुत ब्यूटीफुल है। दोनों तरफ चारों तरफ चीड़ ही चीड़ है, छाया है, वो सब है। देखो, अब हम लोग पुनः आगमन की प्रतीक्षा में ये हमारे बैठे हैं। पता कहाँ है? पौधा वाले नर्सरी। तो अभी फाइनली बहुत सारा चलने के बाद हम लोग आ चुके हैं चीड़वासा में। अब यहाँ से 10-11 किलोमीटर और रह रहा होगा, उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे गंगोत्री। मेरा फ़ोन भी डाउन हो गया है, 20,000 mAh की पावर बैंक थी वो भी डाउन हो गई है, तो शायद से अब यहाँ से कम क्लिप्स आएंगी। बाकी मैं उधर से तो रिकॉर्ड कर ही चुका हूँ। अभी बैठा हूँ मैं फ़िलहाल चीड़वासा में।
तो चलिए चलते हैं गंगोत्री की तरफ। चीड़वासा से साइन ऑफ कर चुके हैं हम लोग। अब सीधा रुकेंगे जाके गंगोत्री में। चीड़वासा से तो हम लोग निकल आए, ये मेरे पीछे है इस ब्रिज के बाद। Such a beautiful track. ये देखो, बहुत ही प्यारा ट्रैक है। आंखों से तो दिख ही रहा होगा, कैमरे में भी दिख रहा होगा। ये सफेद फूल पूरे में सफेद ही सफेद है इधर। तो ऐसे ही नहीं, इस ट्रैक को इतना ब्यूटीफुल बोलते हैं, मैं वापस से बोल रहा हूँ, बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक है। अभी हम वापस लौट रहे हैं और सामने नज़ारा देखिए। ठंड पड़ रही है थोड़ी थोड़ी, अभी जून के महीने में ठंड तो है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है ट्रैक करते हुए। अभी जब वापस जा रहे हैं तो इतना एफर्ट नहीं लग रहा है, आराम से पहुँच रहे हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा नीचे उतर आए हैं चीड़वासा से भी। तो ये फिर यहाँ से ब्यूटीफुल हो जाता है बहुत ही ट्रैक। दोनों तरफ आपको सफ़ेद सफ़ेद फूल मिलेंगे प्यारे से, और हरी भरी, ये देखो ऐसे दोनों तरफ फूल मिलेंगे, और इधर साइड पे हरी भरी वैली। जब ऊपर चढ़ जाते हैं तो वहाँ पे ना ये जितनी वेजिटेशन है ये सब गायब हो जाती है, जबकि यहाँ पे पूरा हरा भरा माहौल है। देखो तो इधर चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, जब दोनों तरफ मस्त पहाड़ है, हरियाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ब्यूटीफुल सा ट्रैक, और डिसेंट ही करना है तो इतना दिक्कत नहीं हो रहा है अभी। लेकिन जब शुरू में गए थे चढ़ने तब तो हालत ख़राब हो गई थी। और
ये ट्रैक जो है वो बता रहे थे गाइड कि 1 महीने बाद, 1 महीने के अंदर अंदर बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर मॉनसून आ जाता है। तो इसको मैक्स टू मैक्स जून जुलाई तक आप मान लीजिए चलने वाला है, उसके बाद इसे बंद कर दिया जाता है। फिर मॉनसून आ जाता है, फिर उसके बाद विंटर आ जाता है, तो फिर ये बंद हो जाता है। चीड़वासा से निकले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। अब शायद से थोड़ी 1-1.5 घंटे में हमें पहुंच जाना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया है चलते चलते। अब तो शाम भी होने लगी है, बादल घिराए हैं। चलो चलते रहते हैं आगे। अभी तो हमारे पास मैप भी नहीं है जो हम पता कर सकें कि कितनी दूर बचा हुआ है। मैंने दूसरे वाले फ़ोन में मैंने डाउनलोड किया था ऑफलाइन मैप गूगल मैप पे, बट वो फ़ोन ही डेड हो गया। तो अभी हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं बिना किसी आइडिया के कि कितनी दूर है। बस शाम हो गई है तो अब सूर्य देवता ढल चुके हैं पहाड़ों के हिसाब से, और अभी पता नहीं कितनी दूर बचा हुआ है। और ये देखिए, और ये देखिए
तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं देवगढ़। अब देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। देवगढ़ के जस्ट नीचे ही आपको ये झरना मिलेगा, ग्लेशियर वाटरफॉल। तो आज मम्मी और पापा की एनिवर्सरी है और हम अनफॉर्चुनेटली अभी घर पे नहीं हैं। तो गंगोत्री गोमुख से, जहाँ से भागीरथी निकलती है, वहाँ से हमारी मम्मी और पापा जी को हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। हैप्पी एनिवर्सरी आंटी को। हैप्पी एनिवर्सरी मैडम जी। आई होप आपको ये विश पसंद आया होगा। तो समय हो चुका है लगभग 6:45 और हम लोग निकले थे गोमुख से 12 बजे के अराउंड, 11:54 टू बी एग्जैक्ट। और अभी 6:43 हो गए हैं। अब हमें यहाँ से मंदिर दिखना चालू हो गए हैं, जो गंगोत्री में मंदिर वगैरह बने हैं। चेक पोस्ट पे जो मंदिर बना है वो दिखने लगा है। तो फाइनली 7 साढ़े 7 तक हम लोग पहुँच जाएंगे गंगोत्री तक। तो 7 घंटे में मोटा मोटा हम लोग 19 किलोमीटर का ट्रैक करके आए हैं, जो कि काफ़ी टफ था। ये पूरी वैली के अलोंग हम लोग चलते हुए गए थे गोमुख तक। तो अभी जस्ट पहुंचने वाले हैं चेक पोस्ट पे, फिर आपको दिखाते हैं चेक पोस्ट पे पहुंचकर। तो गंगोत्री से थोड़ा पहले ही सबके फ़ोन में नेटवर्क आने लगे हैं। तो जैसे ही नेटवर्क आया तो किसी का इंस्टाग्राम चालू, किसी की वीडियो कॉल चालू, किसी की सादा कॉल चालू। सब अपने अपने घर पे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम ठीक हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से हमारा फ़ोन जो है वो प्रोबेबली स्विच ऑफ जा रहा होगा। जो सबका फ़ोन जब स्विच ऑफ जाता है इकट्ठा, जो ग्रुप आया है सबका, तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा टेंशन हो जाता है घर वालों को। तो अभी सब लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं अपने अपने घर पे कि हम लोग कहाँ गए थे, क्या करेंगे। पहले बताया नहीं, तो अब इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो नंगे वहाँ परिक्रमा देवे में घूमना ट्रैक है यार, वन ऑफ द हार्डेस्ट ट्रैक में आते नाम। पूजन आ गया पे गोमुख को ट्रैक करो, करो बताओ, फोटो दिखाएं ले। तो अब हम लोग बस पहुंच ही गए हैं। बस में 1.5 किलोमीटर है। बस थोड़ा सा दूर रह गया है। पीछे मंदिर वगैरह दिखने लगे हैं। मंदिर ही तो ना आ पा रहे, बहुत पहले दिख गए थे वो। और अंधेरा तो हो ही चुका है, काफ़ी टाइम हो गया। नेटवर्क आने लगा है। अब नेटवर्क आ रहा है तो फिर टाउन भी आ ही गया होगा। मतलब दिक्कत नहीं है नेटवर्क। हल्की हल्की बूंदें भी गिर रही हैं, बस तेज बारिश नहीं हो रही है, हल्की हल्की सी हो रही है। उतना तो मैनेज कर लेंगे। बाकी साथ में हमारे रेनकोट भी है, तो कोई दिक्कत है नहीं वैसे। अब बस जाके हम लोग गंगोत्री धाम मंदिर में बैठेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, आरती वगैरह देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे आगे अगली डेस्टिनेशन के लिए। तो फाइनली 4 जून 19:21 पर हमने गोमुख का ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। अब मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा एग्जिट। अभी टाइम हो रहा है रात के 7:21।
और हम आ चुके हैं एग्जिट पे गंगोत्री नेशनल पार्क के। तो हमारा फाइनली गोमुख का ट्रैक जो है कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी मज़ेदार ट्रैक था, बहुत मज़ा आया सच में, बहुत मज़ेदार ट्रैक। तो चलिए निकलते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क से, जो हमेशा से मेरी बकेट लिस्ट में था। मैं हमेशा चाहता था कि मैं गंगोत्री नेशनल पार्क गोमुख का ट्रैक करूं। तो आज फाइनली कंप्लीट हो चुका है गोमुख ट्रैक 4 जून को, और टाइम हो रहा है रात के 7:30 बज चुके हैं। तो अब हम चलेंगे गंगोत्री धाम के मंदिर पे, वहाँ पे आरती अटेंड करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे आगे की तरफ। तो धन्यवाद गोमुख ट्रैक का वीडियो देखने के लिए, और बने रहें हमारे साथ ऐसी और रोमांचक भरी वीडियोस देखने के लिए। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किस्से सुने हैं यूं तो कहते हैं कहीं। कि ठंडे ठंडे पानी से सुबह स्नान करो ना तो दिमाग तेज हो जाता है। कोशिश की है कभी? ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है या क्या है। तो ये है गंगोत्री का मार्केट, चहल पहल रहती है। 9 बज गया है अभी। लाइटर भैया है नहीं। अभी 9 बज गए हैं, तो अब हम लोग यहाँ से कोशिश करेंगे कि निकल जाएं। यहाँ से निकलने के बाद कहीं दूसरी जगह स्टे करेंगे। तो ये है गवर्नमेंट की बस जो चंबा से चलती है। ये हरसिल गंगोत्री सब जगह आपको ले जाएगी। ये उत्तराखंड परिवहन निगम है। तो ये यहाँ पे ये गंगोत्री में आपको पहुँचा देती है 9 बजे। अभी 9 बज रहा है और ये गवर्नमेंट की बस 9 बजे एग्जैक्टली यहाँ पर आ चुकी है। और ये है एग्जिट गंगोत्री धाम का। तो हर्ष के जूते हैं ना, वो खराब हो गए थे, तो इसकी वजह से फिर मुझे अपने वाले जूते हर्ष को देने पड़े, क्योंकि उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। और हम लोग गंगोत्री पीछे छोड़ आए हैं, अब पार्किंग में जा रहे हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं।